Friends, today I am here with part 2, chapter 6, adjectives, kinds of adjectives from your English grammar book, Innovative Basic English Grammar. I think you have revised the chapter and got the kinds of adjectives. And today I am going to give you solutions for the exercises to test yourself. I think you have tried them at homes also. So please listen me carefully, watch this video carefully and fill all the exercises in your books neatly. Okay beta. Now I am going to start it. In first exercise you are to match the adjectives with the nouns they describe. The first one has been done for you. As you know very well, adjectives are also called describing words. That means विशेषण क्या होते हैं बेटा? आपको पहले मैंने जैसे बताया है चैप्टर में कि जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है या डिस्क्राइब करता है वो आपका नाउन्स दिए हुए हैं तो उनसे आपको क्या करना है, इनको मैच करना है. बट यू आर नॉट टू ड्रॉ लाइन्स एज दिस इज गिवन इन एग्जाम्पल. यू आर टू राइट नंबर्स एज आई हैव डन फॉर यू. ओके बेटा. फास्ट, it is connected with the train, so I have written here number 1. You are also to write the same, यानी fast train, तेज गाड़ी. Next, open. What will you open? Here in second column you can see on the very first position there is a word door, so you are to write there number 2. Okay. Next, number 3, hard. What may be hard? There are so many nouns. Door, fox, shoes, rock. Yes, it is rock. Hard rock यानी चट्टान कैसी होती है? सख्त. That's why I have written here number 3 and you are to do the same. Next, hot. What may be hot? Can you imagine? Yes, fire. As you can see here the word fire and I have written number 4 against that word. Next, number 5, dirty. What may be dirty? Your clothes, but there is no word clothes. There are shoes. So you are to write number 5 against shoes. Okay beta. Next, interesting. What may be interesting? यानी जो आपको अच्छा लगता है, रुचिकर लगता है. क्या होता है? You love to listen interesting stories now. That's why I have written number 6 against the word story. Next, 7th, clear. What may be clear? Sky. Okay बेटा. खुला आसमान, साफ आसमान. तो आप इसे क्या कहेंगे? क्लियर स्काई. एंड यू विल पुट नंबर 7 अगेंस्ट द वर्ड स्काई. नेक्स्ट, राइप. वट मे बी राइप? हियर इज अ वर्ड मैंगो. राइप मैंगो. बेटा इन समर सीजन वट विल यू लाइक टू ईट? राइप मैंगोज. ओके. देन वी आर टू पुट हेयर नंबर 8. Ripe mango means पका आम. Okay. Next, cunning. Cunning. What may be cunning? Here number 9 I have written against the word fox. यानी चालाक लोमड़ी. Cunning fox. So you are to write number 9 against the word fox. 10th, hues. What may be hues? There only one word here has left, that is whale.
यानी दैट मीन्स ह्यूज व्हेल, विशाल काय व्हेल मछली. ओके बेटा, you are to write number 10 against the word whale, and I think you have written all the numbers against all the nouns for the adjectives. Okay beta, next B exercise, fill in the blanks with the correct adjectives from those. यानी इस इंस्ट्रक्शन का क्या मीनिंग है बेटा, आपको ब्रैकेट्स में कुछ एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, वहाँ से आपको सिलेक्ट करके सही वर्ड चुन के आपको क्या करना है, गैप में फिल कर देना है. फर्स्ट वन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि पहला आपके लिए किया गया है. आई फेल्ट डैश आफ्टर रनिंग इन द रेस. देयर आर टू वर्ड, टायर्ड, फ्रेश. टायर्ड मीन्स क्या होता है बेटा, थका हुआ. फ्रेश मीन्स ताज़ा महसूस करना. अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, आफ्टर राइटिंग टायर्ड, मैंने थका हुआ महसूस किया. कब, रेस में दौड़ने के बाद. ओके बेटा, नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस. आई एम रीडिंग दिस सेंटेंस फॉर यू एंड कैन यू इमेजिन which word will come here. Okay beta, the dash man knocked out loudly on the door. There are two words, patient and impatient, and I have filled here impatient, and sentence has become the impatient man knocked loudly on the door. That means अधीर व्यक्ति ने दरवाजे पर बहुत तेज़ी से खटखटाया. यानी जब हम किसी को काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाते हैं, जैसे आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप अपनी मम्मा से मांगते हैं, और जब तक आपको नहीं मिलती तो आप उसके लिए बार बार अपनी मम्मा को परेशान करते हैं. तो हम क्या कह सकते हैं, इम्पेशेंट. पेशेंट का मतलब होता है बेटा धैर्यवान, और इम्पेशेंट का मतलब क्या होता है, अधीर. सो दीज आर अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट एडजेक्टिव्स इन द ब्रैकेट. नेक्स्ट, नेहा वाज डैश टू बी इन्वाइटेड. नेहा इनवाइट करने पर क्या थी, सैड और हैप्पी. कोई आपको इनवाइट करता है तो आप कैसे होते हो, हैप्पी होते हैं कि सैड. येस, यू विल बी हैप्पी इफ समवन इनवाइट्स यू. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर हैप्पी. नेहा वाज हैप्पी टू बी इनवाइटेड. नेक्स्ट, वी सॉ अ डैश एनिमल दैट लुक्ड लाइक अ जाइंट लिजर्ड. देयर आर टू वर्ड्स, स्ट्रेंज एंड फेमिलियर. स्ट्रेंज मीन्स होता है बेटा अजनबी, और फेमिलियर मीन्स क्या होता है, जाना पहचाना. हेयर वी विल राइट द वर्ड स्ट्रेंज. देन द सेंटेंस विल मीन, हेयर हमने एक बड़ा ही अजीब जानवर देखा जो कि एक बड़े राक्षस छिपकली जैसा लगता था. ओके बेटा, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ sentence is here. The dash prince promised to help Ramesh escape from the tower. Here are two words, cruel, kind. Cruel means होता है बेटा निर्दयी, kind means होता है दयालु, and I have filled here the word kind. Then the sentence का वादा किया. नेक्स्ट, wear a dash sweater since it is quite chilly outside. There are two words, thick और thin, and I have filled here the word thick. thick means होता है बेटा मोटा,
और थिन मीन्स क्या होता है, पतला। देन दिस सेंटेंस मीन्स एक मोटा स्वेटर डाल लीजिए क्योंकि बाहर ठंड है। नेक्स्ट, मिस्टर गुप्ता कंस्ट्रक्टेड अ डैश शेल्टर मेड ऑफ straw and stones. There are two words, smooth and rough. Smooth means होता है बेटा सॉफ्ट यानी नर्म। रफ मीन्स क्या होता है, कठोर या सख्त। ओके, आई हैव पुट द वर्ड रफ इन द ब्लैंक। ओके, नाउ द सेंटेंस मीन्स मिस्टर गुप्ता ने एक रफ यानी हार्ड सा शेल्टर बनाया है। किसके लिए, किस चीज़ से बनाया है, वो थोड़ा सा रफ है, हार्श है, वो किस चीज़ से बना है, स्ट्रॉ एंड स्टोन्स यानी तिनकों और पत्थरों से मिस्टर गुप्ता ने एक रफ शेल्टर बनाया। नेक्स्ट, द ढाबा इज़ अ डैश रेस्टोरेंट ऑन द मॉल रोड। देयर आर टू वर्ड्स, स्मॉल और शार्प। स्मॉल का मतलब होता है बेटा छोटा, शार्प का मतलब होता है तीखा। एंड आई हैव पुट हेयर द वर्ड स्मॉल एंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस हैज़ बीन चेंज्ड। नेक्स्ट, rugby. Have you ever heard about rugby? It is a game with an oval ball. Rugby is an dash game played in America. कहाँ खेला जाता है ये, अमेरिका में। कैसा गेम है ये, देयर आर टू वर्ड्स, इंडोर आउटडोर, एंड यू आर टू राइट हेयर द वर्ड आउटडोर। यानी रग्बी एक बाहर खेले जाने वाला गेम है। कहाँ का, अमेरिका का। ओके बेटा, नेक्स्ट, दिस बुक हैज़ डैश टेल्स टोल्ड बाय एन अफ्रीकन डॉक्टर। देयर आर टू वर्ड्स, ब्राइट एंड इंटरेस्टिंग। ब्राइट मीन्स होता है बेटा चमकीला, एंड इंटरेस्टिंग मीन्स होता है रुचिकर। एंड यू आर टू राइट द वर्ड इंटरेस्टिंग इन द ब्लैंक। यानी यह किताब, इस किताब में क्या है बेटा, रुचिकर कहानियाँ हैं। किसके द्वारा बताई गई है, अफ्रीकन डॉक्टर के द्वारा। यानी इस किताब में अफ्रीकन डॉक्टर के द्वारा लिखी गई रुचिकर कहानियाँ हैं। टेल्स मीन्स क्या होता है बेटा, स्टोरीज। दैट्स वाई वी विल राइट हेयर इंटरेस्टिंग। ओके बेटा, नेक्स्ट, मोना's class teacher complains that Mona is as dash as a magpie. There are two words, talkative, clever. I have put here the word talkative because magpie is a bird which is very talkative. So you are to write here talkative. यानी मोना की क्लास टीचर See exercise. In this exercise, here is an instruction for you. Underline the demonstrative adjectives in the sentences given below. यानी इस चैप्टर में आपको, इस एक्सरसाइज में आपको क्या बताना है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को बताना है। ओके, फर्स्ट वन इज, दिस डॉग वाज चेजिंग अ कैट यस्टरडे। यह कुत्ता कल एक बिल्ली का पीछा कर रहा था। यह है दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सो यू आर टू सर्कल, आई हैव सर्कल्ड इट बिकॉज you when you underline any word you take it longer, so you are to circle it instead of underlining the words. Okay beta, next, those girls live near the park. वे लड़कियां पार्क के पास रहती हैं। Here those word is demonstrative, so you are to circle it. Next, I cut
these pictures from a book. मैंने ये तस्वीरें किताब में से काटी हैं. So ये these word you are to circle this word. Next, do these books belong to you? क्या ये किताबें आपकी हैं? ये किसके लिए यूज़ हुआ है? बुक्स के साथ में. दिस इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड. सो यू आर टू सर्कल द वर्ड दीज. ओके बेटा. नेक्स्ट, 5th. माने वे पेन बाजार से खरीदे. यू आर टू सर्कल द वर्ड दोज मीन्स क्या होता है? वे. दूर की चीज़ें हैं ना. सो वी यूज़ द वर्ड दैट और दोज फॉर द थिंग्स विच आर फार अवे. नाउ 6th सेंटेंस. दिस बॉय इज़ अ फास्ट रनर. दिस किसके लिए यूज़ होता है? येस, दैट इज़ नियर टू यू. So you are to circle the word this. These flowers are for you. यानी ये फूल तुम्हारे लिए हैं. नज़दीक की चीज़ों के बारे में बता रहे हैं. This is a demonstrative word here and you are to circle it. Next, I bought this car last year. मैंने ये कार पिछले साल खरीदी. ये है कार. यानी दिस वर्ड यू आर टू सर्कल द वर्ड दिस. नेक्स्ट, दैट बुक हैज़ अ ब्राउन कलर. उस किताब का रंग ब्राउन है, भूरा है. यू आर टू सर्कल विच वर्ड? दैट. येस, सर्कल द वर्ड दैट. 10th सेंटेंस. कैन यू क्लाइंब दिस ट्री? क्या तुम इस पेड़ पे चढ़ सकते हो? दिस for the nearest thing and you are to circle the word this. Okay beta. Now here is D exercise for you. Change these sentences into plural forms. यहाँ जो आपको sentences दिए हुए हैं उनको आपने किस में चेंज करना है? Plural. Can you recall? We have discussed the numbers singular and plural. Singular means होता है बहुवचन में चेंज करना है. दैट का प्लूरल क्या होता है बेटा? दोज. चाइल्ड का चिल्ड्रन. ओके. यू आर टू राइट दोज पुअर चिल्ड्रन एंड यू आर टू कन्वर्ट द वर्ब आल्सो एंड इट विल बिकम आर. कंप्लीट सेंटेंस इज हेयर. दोज पुअर चिल्ड्रन आर डेड. सो यू आर टू कीप इन माइंड while changing the sentences you are to change the verb also. Okay. Next sentence is here. This ripe red apple is rotten. This you are to convert this into these. Apple, you are to convert the word apple into apples and is into are, and a new sentence will be in front of us. These ripe red apples are rotten. Okay. Next, that cute little child is us. यानी वह प्यारा छोटा बच्चा हमारा है. Now you are to change the word that into those. Child into children, is into are. Rest will be remain same. Okay. Then a new sentence will be in front of you. That is, those cute little children are ours. Okay beta. Next, that new colorful umbrella is yours. You will do the plural of that into those, umbrella into umbrellas, is into umbrellas are yours. Next, this old thick book has a brown cover. You have to change the word this into these.
and you are to convert the word this into these, book into books, has into have. And we will have a new sentence here. These old thick books have a brown cover. Now come to E exercise. You are to fill in the blanks with interrogative adjectives. First one has been, in first sentence there is a blank and you are to fill this word with इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, यानी आपको इन ब्लैंक्स में आपको क्या करना है, प्रश्नवाचक विशेषण का प्रयोग करके कंप्लीट करना है. ओके, इन फर्स्ट वन सेंटेंस, डैश बुक्स हैव यू रेड ऑन दिस सब्जेक्ट, यानी तुमने कौन सी किताबें इस विषय पर पढ़ी हैं. हियर यू आर टू राइट द वर्ड विच. विच में बेटा होता है कौन सी. ओके, नेक्स्ट, डैश कलर इज़ योर कैट, तुम्हारी बिल्ली का कलर क्या है. ओके, यू आर टू राइट हेयर द वर्ड व्हाट, क्या, कैसा है. फॉर क्या है, कैसा है, इन सब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, व्हाट वर्ड यूज़. We are to write here whose. Okay बेटा, whose की spelling WHOSE. Okay, next, dash bag was stolen. I have written here the word whose, that means किसका बैग चोरी हुआ है. नेक्स्ट, डैश चाइल्ड नोज द आंसर, किस बच्चे को, यानी कौन से बच्चे को आंसर पता है. सो यू आर टू राइट द वर्ड हेयर विच. नेक्स्ट, डैश सन वॉन द रेस, किसके लड़के ने रेस को जीता. यू आर टू राइट हेयर हुज. हुज मीन्स क्या होता है, किसका. नेक्स्ट, डैश कंट्री डिड यू कम फ्रॉम, तुम कौन से देश से आए हो. फॉर कौन वर्ड इन दैट इज़ हिंदी वर्ड, you are to write here which. Okay, so you are to do this exercise neatly in your book. Now here is F exercise. Fill in the blanks with possessive adjectives. possessive adjectives कौन से होते हैं बेटा, जिनसे आपको अपना एक पोजेशन का, ओनरशिप का पता चलता है, हक का पता चलता है कि वो उसकी है, आपकी है, मेरी है. इस तरह के जो विशेषण होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. इन फर्स्ट सेंटेंस, माय अंकल टुक डैश चिल्ड्रन टू स्कूल. हेयर आई हैव रिटन द वर्ड हिज फॉर माय अंकल. ओके, यानी मेरे अंकल अपने बच्चों को स्कूल लेकर गए. You are to write the here word, here a word your, यानी तुम्हारा, आपका. ओके बेटा, नेक्स्ट, थर्ड सेंटेंस, वी ग्रो रोजेज इन डैश गार्डन. फॉर वी आई हैव रिटन हेयर आर, दैट मीन्स हमने अपने बगीचे में गुलाब उगाते हैं. हम अपने बगीचे में गुलाब उगाते हैं. ओके, नेक्स्ट, फोर्थ सेंटेंस, शो मी डैश योर डैश हैंड्स. आई हैव रिटन हेयर योर. द टीचर ऑफन सेज, और योर मम्मा ऑफन सेज, शो मी योर हैंड्स. आई थिंक योर हैंड्स आर डर्टी. सो यू आर टू राइट द हेयर, राइट हेयर द वर्ड योर. ओके बेटा, नेक्स्ट, I brush dash teeth daily. So you are to write here my teeth. For I, you will write here my. Okay. Next, sixth sentence. Look at my dog dash tail is short.
मेरे डॉग को देखिए, देखो इसकी पूंछ छोटी है, यानी यू आर टू राइट हेयर द वर्ड इट्स. यू मस्ट रिमेंबर आई शुड बी कैपिटल. नेक्स्ट, he spends all dash money on gambling. Here you are to write the word his. Okay, that means उसने अपना सारा arms. Here you are to write the word her. That means उसने अपने छोटे डॉगी को, छोटे पपी को कहाँ लिया हुआ था? अपनी बाजुओं में. नेक्स्ट, he is carrying from the he is crying from the pain of dash cut leg. वह क्यों रो रहा है? क्योंकि उसकी लेग में कट लग गया है. उस for he I have written the word his. Next, the children carried dash bags to school. यानी बच्चों ने क्या उठाए थे? उनके अपने बैग थे. For children I have written the word here there. So it means बच्चों ने अपने बैग स्कूल के लिए उठाए थे. I think you have got all the exercises and you are to do all these exercises very neatly in your books. We will meet with a new chapter with a new explanation in next video. Till then, have a nice day. Bye. Stay fit at your home.